ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم ندیم, کیا حال ہے یار؟ ایک ہی کی تانا نے یار ندیم. وعلیکم السلام وسیم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوبارہ براڈ آن کی تھی یار, وہ سارے رولا پایا سی, پتہ نہیں میں سارے چلے گئے. وہ جانا سی کسی سیاح سے. ندیم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیک میں کہا کچھ بھی نہیں. میں کہا براڈ دوبارہ سٹارٹ کی تھی. میری آواز آ نہیں ہے وسیم؟ میری آواز آ رہی پتا نہیں. ہاں اچھا ہاں, چل ٹھیک. میں کہا دوبارہ براڈ چنگا بلا رش پہ اسی صاحب تو خراب ہو گئے تھے. سلسلہ تھوڑا جہا خراب ہو گیا سی, تو براڈ ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی سی. ندیم, ندیم بھائی میری آواز آ رہی ہے یار؟ میں نے دسے گا تاری کوئی گل بڑی نہیں ہے. آج دکان بند نہیں کی تھی. ہاں جی ہاں جی, آ رہی ہے آواز. تو تھوڑی جی بحث چل رہی ہے. تو وہ آواز تھوڑی شوکر بڑی ہے ادھروں مائک تھوڑے سے. ہوں بھی شکر بڑی. ہاں جی بڑی شوکر ہے. ہوں ٹھیک ہے. ہاں جی ہوں ٹھیک ہے. چارجر لایا تھا جی. نہیں وہ میں کان نہیں چلائی سی. وہ اچھا ہاں اچھا. کیسا رہا سلسلہ پہلا آپ ساڈا کیسا رہا؟ ہاں
ਨਦੀਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਸੀਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ السلام علیکم عابد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم شکر بابا فرجو کی حال ہے تھوڑا ٹھیک ہو سب جی الحمدللہ سر، دعا چاہیے جی۔ کی ہو رہا عابد ہے؟ بھائی مینو کوئی شے بھی شو نہیں ہو رہی تے میں کال تو اتر کے نا پھر دوبارہ کال پانا، ایک منٹ۔ چلو ٹھیک ہے چلو جی بابا جی ہوں گل کرو تسی آرام نال گل کرنی ہے، اور پہلے گل ختم کر کے میوٹ کرنا ہے، پھر اس بعد میں گل کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہن کھولو تسی میوٹ۔ فری کشمیر کھولو میوٹ پا۔ جی جی جناب۔ جی 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 عابد بھائی ہن شو ہون لگ گئی ہے مینو سب شے نا، اچھا پہلے اچھا شو کچھ نہیں ہو رہی سی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے جی، میرے اوسی بھائی آ گئے نے، انہوں نے انتظار کر رہے تھے۔ جی سر۔ نہیں کی کہتے ہیں عابد حسین بھائی، اتنے کوئی پٹواری پٹوری تو نہیں آیا نا؟ نہیں وہ پیپل پارٹی لایا سی تے او پیپل پارٹی ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਧਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ، ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ نہیں اگر ਡਿਬੇਟਰ کوئی ہن آوے تو پھر جی ٹینشن نہیں لینی، میں بیٹھا اتنے میوٹ لا کے، تسی آپ دی گل بات شروع کرو۔ نہیں ان کو پی ٹی آئی اور بالکل صحیح، ہمیں بھی یہ گل آ رہا تھا، مارو گولا خراب کر چڑیا سسٹم۔ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਸ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਲੱਗੇ ਸਨ। ओसी भाई भी चले गए सर। ओसी भाई क्या हाल है? आज आपने نہیں जैसे عابد بھائی کو گالا گولا کٹ کے گیا یا ویسے ہی ٹر گیا سکا ہی؟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ نہیں نہیں یہی میں پوچھ رہا نا، اگر کوئی اتنے کوئی ڈنگا آوے تو پھر اسی ادھر ڈنگا ہی ہو کے ملنا پینا نا بھੈਣ چود نال۔ اور نہیں شکریہ ਅਸੀਂ بالکل ਤੁਹਾਡਾ بابر عزت صاحب، کرنے ہیں بالکل میں اس جی گل کی سمجھ تھوڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے، بالکل صحیح۔ ہاں نہیں کیونکہ بابا نہیں وہ فرض سی خراب کرنے، روٹیاں خراب کرنے، پولیٹکس گندی پولیٹکس ہے ہاں کہ پولیٹکس اچھا کی عبادت ہونی چاہیے، پتہ ہے گندی politics۔ جی عابد بھائی کی خبر خبران نے کوئی سر انفارمیشن دے اسی تو ایک ہی کام نو لگے ہوئے، تمہیں پتا تو ہے، پھر پٹواریاں دے پیچھے پھرتے رہنے اسی۔ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ خبریں سر جی بابا خبریں صاحب پیپل والے کی دبا کے رکھو، پیپل والے بھی گند نہیں مچا نہیں دیتے عابد بھائی تمہیں پتا ہے نا، ہیں نہ تسی ہن کیونکہ دیکھو نا تے کہ تسی ہن 5-6 ویر بھرا بیٹھے ہاں سی کہ تسی ہن بروڑ چلاندے ہو ڈبیٹ والی، جی ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی ہے گے موٹے دماغ دے، کیونکہ ساڈے تے جڑا پٹواری چڑھ گیا سی انہوں پکڑ کے رگڑ دینا بھੈਣ چود۔ پتہ ہے سر پتہ ہے سر یہ پتہ ہے جو پیپل تھی سر پارٹی غلط کر چھوڑنے، یہ پی نہیں ڈی ایم والا سارا ٹولا نو ہے۔
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰ ਥੋੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਇਰ ਨੀਮੇ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਪਾਰ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ اور تو سر انصاف نو ماشاءاللہ انصاف انصاف اچھے لوگ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਬਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਾਰੀਓ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋ 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਖਾਨ ਦਾ ਆਮੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੈਚ ਚਿਪਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਟਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾ اللہ کرے میں اعتبار کو نہ کرنا جی شاہ محمود قریشی میں تو چیئرمین صاحب برا اعتبار کرنا جی بابا چھرے مار ویلکم ہو گیا تیرا کال تے آ جانا بابا چھرے مار بابا چھرے مار کال تے آ جانا تھوڑی انفارمیشن تے اوتھے تسی ووٹنگ کرا کی پوزیشن بنی ہے ووٹنگ دی السلام علیکم وعلیکم السلام سر سارے بھائی ٹھیک ٹھاک نے الحمدللہ دعا چاہیے جی الحمدللہ جی الحمدللہ جی ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ 260 ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 64 ਵੋਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੱਲ ਪੀਪੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੱਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕੱਲੇ 5 ਵੋਟ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਸੀ 296 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੋਡ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ का डेरा साहब सर पीटीआई का डेरा करेंगे जी है जी पीटीआई का डेरा बरोड है पीटीआई का डेरा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਰੋਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ VOTING ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ 10:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰੋਡ ਆਨ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਵੈਸੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1:50 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਮ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਜੀ ਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 12 ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਚ ਬਰੋਡ ਦਾ ਚੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੁੰਡੀ ਖੋਤੀ
ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਜੱਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਕਿਬ ਗੁਜਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਦੜ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਮਲਕ ਚਲੋ ਸੁਬਾਨ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬਾਬੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਨੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਡਿੰਗੇ ਨਾਲ ਡਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ओसी भाई ਜੀ सलाम ਜੀ अलैकुम। ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। जी वालेकुम सलाम आबिद भाई। अच्छा ओसी भाई, मैंने आज जो है ना वो आपके लिए निकाल के रखी हुई थी वो एक वो, लेकिन वो पैनल पूरा नहीं हो रहा ना, वो अगर ऐसा भी आ जाए ना तो वो मैंने वो जो इन्होंने दिए थे ना, जितने हमारे जो आप कल बात कर रहे थे स्कॉलर्स के लिए लेके जाते हैं, तो वो मैंने निकाल के रखी हुई थी, वो मैंने आज सुनानी थी। मैंने मेरा दिल कर रहा था कि आज सुनाए उसके नहीं ऊपर आते हैं बस। नाइट भाई, आप सुनाएं, बल्कि इन भाइयों को भी सुनाएं, ये भी सुनेंगे, कोई नहीं मसला ऐसा। वो जो शरफ ने दिए थे ना, जो जितना सिलसिला किया था, और आज भी जो ये कर रहे हैं हमारे जितने PhD होल्डर हैं, उन सबको जो दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, और ये मार रहे हैं सारे, यानी ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। मैं बल्कि आबिद भाई आज खान साहब ने 2 किताबें मंगवाई थी, आज उनको मिल गई हैं माशाल्लाह। एक थी वाई नेशंस फेल, ये किताब थी, और दूसरी उन्होंने आजकल बड़ी बुक्स रीड कर रहे हैं ना खान साहब। जी हाँ, जी हाँ, कुरान पाक भी रीड कर रहे हैं और बुकें भी ले रहे हैं, लेकिन नाम मुझे नहीं पता। वैसे अमेज़न पे वो आ जाती है। जी जी। दूसरी उन्होंने मंगवाई थी आज ऑल द लॉज बट वन, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ये इसी टॉपिक से जो आपने बात की है ना, सिविल लिबर्टीज इन वॉर टाइम, ठीक है। कि जो एमरजेंसी जैसे मिसाल के तौर पे जब भी जो आमराना हुकूमतें होती हैं वो जंगी हालात पैदा करके आपकी शख्सी आज़ादियों को सलब कर, ठीक है जी। जैसे मुशर्रफ ने किया, जैसे अभी ये कभी ये रजीम कर रही है इनकी, ठीक है ना, सारी आपकी शहरी आज़ादियाँ खत्म कर। तो ये खान साहब ने आज मेरे को इसका रिव्यू मुझे एक दोस्त ने भेजा, तो अभी जो आपकी ये पीपल्स पार्टी की डिस्कशन चल रही थी उस भाई के साथ, तो मैं असल में ना वो रिव्यू पढ़ रहा था, मुझे रिव्यू भेजा किसी ने उसका। तो आप चलाएं, वो जो आप रिकॉर्डिंग है चलाएं, ये भाई सुनेंगे हमारे यहाँ पे। वो मेरा जैसे सब पैनल हो ना, वो ताकि मुकम्मल हो जाए, ताकि उसमें बातें जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, उन्होंने बड़ी चीज़ें उन्होंने बयान की हुई हैं, वो हमें सर वो जो बेनस्ती बातें हैं वो हम सब भाइयों के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हमारे बच्चों से मुतल्लिक बातें हैं, यकीन करें वो ऐसी बातें जो हम सब से मुतल्लिक हैं। नहीं आ रही आपकी। तो आप उसको अभी भी कर दें, बाद में भी जब आएंगे हमारे फहीम भाई या नायतुल्ला भाई, तो हम फिर दोबारा कर लेंगे। मैं निकालता हूँ, देखता हूँ, मैं निकालता हूँ। आप बात जारी रखना, थोड़ा सा इसके ऊपर देंगे, सुन रहे हैं भाई सारे, ये बाबा फॉर यू, और नीचे सारे हमारे अपने अपने बंदे, इन्हें भी सुनाए आप। मैं निकालता हूँ। वो बाबे ते नस गए ने आबिद भाई तुहाडे। और नहीं वो नहीं दसे, वो साढ़े नाल ही ने। ये सर हमारे वो हैं, कमांडोज हैं। ये जो कोई वो हमारे ज़मीनी कमांडो हमें पता है जी। हाँ, ये हमारे कमांडोज हैं। हमारी ये दफा की वो जैसे ISI कहती है ना, आप पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर, ये हमारी दफा की पहली लकीर है। ये हमारी पहली लकीर है। अगर कोई पटवारी वगैरह आ जाए ना, तो अगर कोई ऐसी वैसी बात कर जाए ना पटवारी, तो फिर हम इनके हवाले कर देते हैं। हम सिर्फ फोटो ले लेते हैं उसकी, फोटोशॉप, तो फिर इनके हवाले कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं, उनके पास तो जी सारी जो पटवारियों का सिस्टम है ना ब्रदर, वो तो जो ज़हनी लेवल है उनका अंदाज़ा करें ना, गुलू बट एंड कंपनी है, यानी कि वो तो है ही गालम गलोच ब्रिगेड है ना सारी। और ये सारे, आपकी मज़े की बात है कि ये सारे जैसे PTI के माशाल्लाह वर्कर है, नीचे से लेके ऊपर तक जो वर्कर है। ये सुने जी जी जी। पाकिस्तान को जो समझते हैं कि यहाँ डॉक्टर कबीर पैदा होंगे, तो ये डिसाइडेड कि हमने हर आदमी को एलिमिनेट करना है, उसके लिए वो मुशर्रफ उसकी बाकियात इस्तेमाल होंगी। मैं उसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान में अभी जो रिपोर्ट कमीशन ऑफ वुमेन, इसने कमीशन ऑफ मिसिंग पर्सन ने जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने एडमिट किया कि 9,000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। साइंटिस्ट पाकिस्तान जिसने उसकी शादी की, उसको कहा गया
उसकी वालदा बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट में आती थी, उसको फिर धमकी दी गई, उसका एक और बेटा फिर उठा लिया गया। अब मेरे बेटे जाने के बाद भी मुझे पता नहीं कि पूरी माँ वो किधर चली गई, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनना छोड़ दिया। इसी जजमेंट की इत्तेफाक के साथ भी जिस नंबर पॉइंट किया कि 35 लोग जो है मनगढ़ सेंटर से उठाए गए, उसकी कमांड को बुलाया गया, उसने कभी आर्मी उठाकर ले गई है। वो भी आर्डर उन्हें जारी कर दिया 2014 में कि वो सारे बंदे इमीडिएटली पेश किए जाए, और साथ हुक्म भी दिया कि आर्मी को किसी को एफआईआर के बगैर अरेस्ट भी नहीं कर सकती। आज 2023 आ चुका है, अतर में नल्ला साहब ने भी आर्डर रिपीट किया वही, लेकिन आज तक वो बंदे रिकवर नहीं हुए। तो किधर चले गए 35 लोग? वो भी किधर चला गया? उसके अलावा एक याद इंजीनियर थे पेट्रोलियम के इस्लामाबाद में, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको अमेरिका में जॉब देंगे। वो पाकिस्तान की किसी पेट्रोलियम कंपनी का सीईओ बन गया, पहले पाकिस्तानी था। और जब उसने इनकार किया अमेरिका जाने से, तो उसके घर के रेड हुआ और सजाद और उसका भाई जमशेद दोनों को घर पे मार दिया गया, एनकाउंटर में खत्म हो गया। वो ये 2013 का केस है, एफआईआर भी कर दी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक और था शायद शायद शहजाद, ये भी इंजीनियर था बाबला का, इसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने पीएचडी के लिए इन्विटेशन दी और उसको सिलेक्ट कर लिया, जो वो फर्स्ट डिग्री था। और जाने से हफ्ता पहले इसको लाहौर से उठा लिया गया, उसका भी पता। उसके साथ जिसको उठाया गया उसने आकर कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई कि वो मेरे साथ उठाया गया था, उसको ले गया कि मुझे छोड़ दिया गया। कमीशन ने 450 लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, एक आर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एक बंदा भी जारी किया। तो ये जितने लोग उठाए गए ये सारे इंजीनियर, और ज्यादातर जो इंजीनियर थे और वो थे जो पीएचडी डिग्री होल्डर थे, या इनको एडमिशन बाहर मिला था कि वो जा रहे थे। एक लड़का इमरान है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो मिडिल ईस्ट से वापस आया, वहाँ 4 साल से नौकरी कर रहा था, बहन की शादी अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद से उठा लिया गया। उसमें भी अतर मिनल्ला साहब ने आर्डर दिया कि उसको पेश करें, नहीं पेश किया गया। उसके अलावा साजिद महमूद इंजीनियर है, ये बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली 2 भाई अमेरिका गुंतानामा बे से रिहा हुए, गुलाम रब्बानी और उसका एक भाई, ये 2-3 दिन हुए आपने प्रेस में। और उन्होंने कहा जी 20 वर्ष के बाद उन्हें डिक्लेयर इनोसेंट कि वो इनोसेंट के हम रिहा कर रहे हैं, जबकि यहाँ से जब उन्हें भेजा गया तो यहाँ से उनको कहा गया कि वो सहूलियतकारी उनके लिए कर रहे थे, जबकि उनके खिलाफ कोई एलिगेशन 20 साल में भी साबित नहीं हुआ। और अभी भी 32 लोग गुंतानामा बे में है, वो कैसे वहां पर पहुंच गए सर, किस तरह पहुंचाएंगे? और दूसरा वाइड इंजीनियर हुआ भी, और मैं खुद पर्सनली उन लोगों को भी जानता हूँ, मैं जरसरी 14 में रहता हूँ, यहाँ से भी उन्हें गुलाम साहब इंस्टीट्यूट से की वापस आए, और यहाँ से उनकी वालदैन ने उसकी शादी की, और शादी के बाद उसको उठा लिया गया, उसका एक बेटा भी पैदा हुआ। 4 साल को पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, बीवी भी चली गई। 4 साल बाद उसने बड़ी एफर्ट्स की, उस बंदे उसके वालिद का आर्मी से ताल्लुक था, उसको रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसके लंग्स खत्म हो चुके थे और 6 महीने में घायल अंदर उसकी डेथ हो गई। इतने लोग चांदी लोग जो रिहा भी हुए, एक और इंजीनियर है साजिद महमूद साहब, इस्लामाबाद से उठाया गया, कोई चार्ज ही नहीं है। हमने इन सारे केसेस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हाईकोर्ट में फाइल किए केसेस, और इन बहुत से केसेस में हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपया भी फाइन किया डिफेंस शक्ति पे, एक में 20 लाख रुपया फाइन किया कि आपके पास है, आप इनको रिहा करें। एक इमरान लड़का है, वो इस्लाम को मिडिल ईस्ट से वापस आ रहा है, बहन की शादी के लिए उसको गिरफ्तार कर दिया गया। अभी ईमन परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में ये कैटेगरिकली लिखा कि सिर्फ एक केस में हमें $25 मिलियन इनाम मिला, एक हमने फॉरन पकड़ के दिया। उस $25 मिलियन, ये सफा नंबर 243 है ये किताब का, अगर पढ़िए उनकी किताब में। वैसे तो उन्होंने एडमिट किया कि आई अर्न $1 मिलियन, लेकिन मैंने रिट दायर की कि ये बताया गया इसका कौन कौन रिसिपिएंट था, किस किस को ये पैसा मिला। उसके बाद एक रूटीन बन गई, अमेरिकन यूज्ड टू पे देम $5,000, जो भी ये बंदा पकड़ के ये सिफात लिख देते फैसिलिटेटर है और भेज देते उनके पास। भाई आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मेरे पे एक इल्जाम है, मुझे कोर्ट में पेश करें और सबूत दें और उसके बाद जिधर मर्जी करें। लेकिन आप किस तरह एक पाकिस्तानी इंजीनियर को आपने भेजा, और जिसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान से जितने इंजीनियर हाईली क्वालिफाइड लोग थे वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले गए। आज आप कनाडा में बैठे हैं, आप कनाडा से चेक करें, आज स्कैंडिनेवियन कंट्री में चेक करें, वो लोग बेचारे वहाँ माली का काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर थे पाकिस्तान में, सिर्फ जान बचाने के लिए निकले कि यहाँ से पकड़े जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं एक डॉक्टर की बात करता हूँ, डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद, ये ही आप नेट पे चेक कीजिए, आप पाकिस्तान के ये रिनाउंड इंजीनियर हैं, हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर थे, और पाकिस्तान का पहला इंजीनियर जो रिएक्टर था वो उन्हें एस्टेब्लिश किया। इनको भुट्टो साहब ने अपने जमाने में $1 लाख इनाम दिया, क्योंकि उन्हें हैवी वाटर टेस्ट करने का आला बनाया था। ये जब रिटायर हो गए इनको उठा लिया गया, और इनकी वालदा इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में आई और किसी ने माना ही नहीं हमारे पास है। और वहां उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की माओ से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाना, साइंसदान भी न बनाना, अगर ना तुम्हारे बच्चों को उठा लिया जाएगा, लापता कर। मुझे आज तक उसकी स्टेटमेंट याद है। बशीरुद्दीन महमूद साहब को फिर अमेरिकन के हवाले किया गया, 40 दिन तक उनकी कस्टडी पाकिस्तान में रहे, उनको इंटरोगेशन का यहाँ सेंटर बनाकर दिया गया, और 40 दिनों के बाद अमेरिकन ने लिख दिया कि इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। मैं उनसे खुद मिला यही के बाद, और उसके बाद यूएन ने उनका नाम टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया, वो यहाँ हो गए। उन्होंने कहा कोई चार्ज नहीं। पहली बात है भाई यू हेडेड ओवर द पाकिस्तानी इंजीनियर, अपनी टॉप क्लास बंदे को आपने किस कैपेसिटी में उनके हवाले किया? उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी दे दी है पाकिस्तान को और हमारे साथ ये सलूक किया गया। मैं मिल चुका हूँ जाती तौर पर उनसे, सवाल क्यों करे सर? जब उन्हें एक दफा $25,000 हमें $25 मिलियन दे दिया ना, उसके बाद उन्हें एक लाइन लगा ली, उन्होंने कहा जी जो भी हाईली क्वालिफाइड बंदा है, क्योंकि वो CIA सबको मॉनिटर कर रही थी यूनिवर्सिटी में,
हमारे पास कुछ मिडिल ईस्ट के लड़के थे जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो कर रहे थे एमएससी, उनको वहां से उठाया गया, जिसका नतीजा निकला कराची यूनिवर्सिटी में हंगामे हुए। आई वाज इन कराची एट दैट टाइम, तो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठा लिए गए। फिर फियर क्रिएट करने के लिए इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जो थी, यहाँ लड़कों ने मुजाहरे किए, उनको उठाया गया, वो आज भी लापता है वो लड़के। आई फॉलोड दोस केसेस बिकॉज़ आई वाज इन द आर्मी। एक फियर, एक पद, दो पर्पस थे, एक तो डॉलर कमाने, आप लिख कर दे दें कि ही इज फैसिलिटेटर, और उसके बाद वो $5,000 आपको नकद इनाम दे देते कि ये ले जाए। एक पाकिस्तानी रिहा के आया, उसने बयान दिया बड़ा जबरदस्त, उसने कहा जी मुझे यहाँ से उठाकर बगराम ले गए, और वो मेजर साहब जो मुझे उठाकर ले गए थे, उन्होंने वहां मुझे अमेरिकियों के हवाले किया। अमेरिकी ने मेरे चेहरे से नकाब उतारा, तो मैंने मेजर साहब को देख लिया, तो उनके हवाले करते हुए मेजर साहब ने कहा अच्छा जनाब फी अमान अल्लाह। जी सर, सुना आपने? जी बिल्कुल आबिद भाई, ये बगराम जेल पता है आपको, ये वही जेल है जहां आफिया सिद्दीकी को हैंडल किया जी गया। जी जी, बिल्कुल 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 वही है। ठीक है ये ना? यहाँ से लेके वहां लेके जाते थे। ये सर इनकी पुरानी एक, मैं इनका केस अब जो कहते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसका मैं एक दफा देख रहा था कि गोरा जब इस खित्ते में आया ना तो यहाँ सांप बड़े थे आपके इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना, सांप बड़े थे। तो उसने ये एक स्कीम दी कि जो सांप एक सांप मारेगा या सांप मार के लाएगा ना, उसको कोई नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त ये हमारे जो फौजी, उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनने के बाद का ये वाकया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने का वाकया, ये फौजियों ने जो हमारे यहाँ से रिक्रूट किए इन्होंने, ये घरों में सांप पालते थे। ठीक है ना, खुद ही सांप पाले, 8-10 ले गए जी, हमने पकड़े हैं। तो वो काफ़ी पैसे, मतलब उस तरीके से इन्होंने वो काफ़ी उस जमाने में भी पैसे कमाए। तो बाद में गोरे को समझ आई कि यार इतने हाथ का हो रहा है। तो ये जनाब, ये इसी तरीके से इनकी एक, हम तो इसीलिए कहते हैं ना कि इनको आपने अगर इनकी किताब का पहला सफ़ा खोलना तो आपको वो कलकत्ता कंपनी से चलना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से चलना पड़ेगा, वरना आपको इनकी जो है ना मंतिक लॉजिक वो समझ नहीं आएगी। अब जो कुछ ये पंजाब में कर रहे हैं सर, ये जितना हमारा डॉक्टर है वो जो बाहर जा रहा है, ये डॉक्टर के साथ क्या कर रहे हैं? सर मैं आज आपको यही बता रहा था कि खान साहब ने जो आज उनको 2 बुक्स पहुंची हैं ना उधर जेल में पढ़ने के लिए, उसमें एक है वाई नेशन फेल, कि कौमें नाकाम क्यों होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे, उसमें भी एक ब्रेन ड्रेन की वजह है कि आप जो है अपनी अल्लाह की ज़मीन आप इतनी तंग, सर देखें पढ़े लिखे तो बंदे अपनी जगह पे, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग वहां पे, आप यकीन करें, 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए दे के मौत खरीद रहे हैं ये यूरोप आगे पीछे जाने के लिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे लगी थी, एक यंग बच्चा वो डंकी लगाते हुए रास्ते में कहीं गिरा पड़ा था, तो वो चलने की सकत नहीं थी उसमें, तो वहीं पे ही बस गोइंग टू डाई देयर। तो वो फिर शायद मेरा हाल उसमें साथ कुछ अफगानी थे, उन्होंने उसको कंधे पे उठाया, लेकिन वो भी कितनी दूर तक उसको कंधे पे उठा के लेके जाएंगे, आप अंदाजा करें। तो ये जो सरजमीन है, जो अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें अक्सर हम बात करते हैं कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इस सरजमीन के अंदर, जो नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, इसके अंदर क्लाइमेट जोन्स कितने ज़्यादा हैं, इसकी जो जियोग्राफी है हमारी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हम इस कदर बदहाल एक हमारा सूरत हाल है कि वहां से हर जी शऊर उस जहन्नम से भाग जाना चाहता है, हर जी शऊर उस जहन्नम से। वाई? दैट्स द क्वेश्चन। जी हाँ। पढ़े लिखे तो चले, ब्रेन ड्रेन हमारा हो ही रहा है ना जी जी। फ्री कश्मीर भाई आप आए ना जी, माइक ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, आप शुक्रिया। आप काफी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। बेसिकली ये क्राइसिस ऑफ लीडरशिप ही है ना, अस्सलाम वालेकुम जो कश्मीर, फ्री कश्मीर, जहर है एक मिनट, वहाँ अपडेट पता है, वो भाई, आप अक्सर ये नहीं ना वेलकम पैदा हो गया होने ब्राड देते थे। लीडर अच्छा। ये अब ट्राई की है खान साहब ने। एक मिनट अपडेट भाई, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पहले 2 दफा सलाम किया भाईजान। जी वालेकुम सलाम।
جی بھائی جان، میں بھائی جان UK میں رہتا ہوں اور پاکستانی ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ. تو براڈ کے لحاظ سے ہم جو ہے نا PTI کی سپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، عمران خان کی سپورٹ میں. تو آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے بھائی؟ بھائی جان آپ بات کیسی کرتے ہیں؟ جو بھی تھوڑا سا شعور رکھتا ہے وہ کسی اور کو پسند کر سکتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ جی سوال بھائی جی، معذرت ہو گئی کیا کہ گڈ بات ہو ہے گیا. بھائی؟ وہ بندہ ہمارے لیے جیل میں ساتھ ہیں بیٹھا ہے، اپڈیٹ، ٹھیک آپ ہے، بھی اوپیپل والے ہیں، ہمارے لیے وہ اوپینین تو بندہ نہیں ہے، ماریں گے، دل کاٹ رہا ہے، وہ انٹلیکچوئل ادھر آئے ڈبیٹ نا، کرتے جسٹ اے منٹ برو، وہ ادھر آئے، اس کی بادشاہوں جیسی عزت ہیں. ہوتی ہے اس کنٹری کم میں، اگر وہ کرتا ہوں آتا ہے کہ ہوئے تو ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہاں دل بھی کاٹ لیبر ہے، کنسرویٹو ہے یار، انٹلیکچوئل ڈبیٹ کریں نا، ایسے تو نہیں نا بس ایگری سی بات کریں، تھوڑا ڈیپ جائیں. کون سی پارٹی کے ساتھ ہے؟ انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے نا، کوئی ایسا نہیں. آپ میرے سے بات کر رہے ہیں بھائی جان؟ جی جی جی، آپ سے. اور سر دوسرے تو میری ظاہر ہے میرے بھائی ہیں، وہ بھائی تو جان یہ فیملی. میری چھٹی ID ہے، تو میری تو جند جان ہے خان، آگے آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں۔ جی جی صحیح. میں تو وہی بات کرنے والا تھا، اوسی بھائی وہ بیک ڈیٹ دے رہے تھے، انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی. بالکل بالکل، تو کیا ہوا پاکستان میں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا نا، کرائسس آف لیڈرشپ ہے بیسکلی نا. تو پھر 100%۔ ایکسپلوئٹ کیا جو ورلڈ پاور تھا ہم نے. میری تو یہ نقطہ نظر ہے. جی فری کشمیر بھائی، آپ نے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اکثر ماشاءاللہ میرا حال فہیم بھائی بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم فہیم بھائی. تو دیکھیں ہمارے پاس ہر چیز ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری آبادی کے لحاظ سے، یعنی جتنی ہماری ہیومن ریسورسز ہیں ہمارے یہاں، ہمارے پاس جتنے نیچرل ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ایک اسٹڈی جسے کہتے ہیں نا پراسپیکٹس آف دی فیوچر اکانومیز، رائٹ. تو ایک اسٹڈی میں نے دیکھی تھی اوکے کہ پاکستان کو، آپ کو ان تمام گیون سرکمسٹانسز میں دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہونا چاہیے پاکستان. آپ کو دنیا کا چوتھا بڑا طاقتور ترین ملک ہونا چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے. جہاں پہ یہ جرنیل ہیں ٹکے ٹوکری جناب، یہ جو ہیں وہ سودے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو میں بلکہ یہ دیکھیں، ایک میں آپ کو بڑا زبردست بتاتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں آپ سب بھائیوں سے. یہاں ہمارے US میں نا ایک سٹی ہے بالکل میکسیکو کے بارڈر کے ساتھ، نوگالس، اس شہر کا نام ہے نوگالس. وہ شہر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی کہ 1846 کے اندر، یعنی کہ 1846 کے اندر جو US میکسیکو کی جنگ ہوئی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ US نے جو آج وہ سارے میکسیکو کے بارڈر کے علاقے ہیں، وہ پہلے میکسیکو کا حصہ تھے. تو یہ انیکسیشن ہوئی، ٹھیک ہے، وہاں سے کیلیفورنیا، نیو 1846 کے اندر، میکسیکو ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو شہر ہے نا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی جیسے کسی زمانے میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی تھا، تو اس کے درمیان میں سے US اور میکسیکو کی نا بارڈر لائن گزرتی ہے، جنگلہ لگا ہے، رائٹ، نوگالس. تو جو US کی طرف اس شہر کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں نوگالس ایریزونا، یعنی وہ ایریزونا کی اسٹیٹ ہے، رائٹ. اور جو میکسیکو کا نا وہ منورو ہے، یعنی ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ منورو، تو اس کو کہتے ہیں نوگالس منورو، رائٹ. اچھا، اب یہ جو ہے نا، کوئی یہ یہاں پہ ایسے نہیں تھا کہ جب یہ یورپینز گئے ہیں تو یہ کوئی یہاں پہ انڈیجنس لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے. بہت سی ایسی آبادیاں ہیں نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر جہاں مکس بریڈ ہے، رائٹ. یعنی جہاں پہ پہلے انڈیجنس لوگ تھے، بہت سے تو انہوں نے مار دیے لیکن پھر بھی کچھ بچ گئے، تو وہاں یہ یورپین سیٹلر بھی ساتھ میں تھے، اور انڈیجنس لوگ جو تھے وہ بھی مکس کر کے ایک ہائیبرڈ جو ہے وہ بریڈ بنی وہاں پہ. یہ جو ہے نا، یہ بالکل ایک خالی جگہ تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اسپینش تھے اس زمانے کے اندر، تو یہ اسپینش ایک آبادی تھی جو ایک تھوڑے بڑے شہر کی شکل اختیار کر گئی، رائٹ. جو آج تو 1846 کے اندر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایتھنکسٹی کے اعتبار سے بھی یہ ایک طرح کی پاپولیشن ہے.
जियोग्राफी भी आप देख लें इनकी एक जैसी है, इनकी बीमारियां डिजीजेस भी एक जैसी है, ठीक है ना, इनकी जो एनवायरनमेंट है, इनके जो वेदर, एवरीथिंग इज अलाइक, एक जैसी है। लेकिन अगर जब इनका आप, जी सर, अगर इनको कंपेयर करें ना इस शहर के दो हिस्सों को आप, ठीक है ना, यानी एक तरफ जो पर कैपिटा इनकम है, यानी सालाना जो आमदनी है फी बंदा या फी शहरी, वो 30 से 35 हजार यूएस डॉलर है, ठीक है। दूसरी तरफ 5 से 7 हजार यूएस डॉलर है। एक तरफ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मिसाल के तौर पे वो 85 ईयर है, यानी जो अमेरिकन साइड है उसके ऊपर जो कोई बिल्कुल सेम एथिकसिटी के लोग उसी जगह पे रह रहे हैं, वो 85 के हैं, इधर 52 टू 55 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उनकी एजुकेशन देखें, एक तरफ जो है वो मोस्टली जो आबादी है वो स्कूल ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है ना, अमेरिकन जो हिस्सा है उसमें स्कूल ग्रेजुएट्स हैं, दूसरी तरफ ज्यादातर अनपढ़ आबादी है, राइट। एक तरफ क्राइम है उसकी रेशो कम है, दूसरी तरफ क्राइम की रेशो ज्यादा है, एक तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, दूसरी तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा सवाल ये है, आप जैसे आपने सवाल किया ना कि मुल्क क्या, आप देखें कि इसमें देन व्हाट इज द डिफरेंस, आप इन एक ही शहर के दो हिस्सों में वो कौन सी चीज है जिसने एक हिस्से को इतना तरक्की याफ्ता और बेहतरीन बना दिया और दूसरे हिस्से को पुअर और इम्प्रोविस्ड कर दिया, वो कौन से फैक्टर है, राइट। तो फहीम भाई अगर आप सुन रहे हैं तो ओवर टू यू, फिर इसको थोड़ा सा डिबेट को अगर आप कहेंगे तो लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले तो हमारे नए साथी अपडेट भाई, आपको अपडेट की मुबारक हो। माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। तो बिल्कुल सही है। देखें ओसी भाई, असल में जब अक्सर यहाँ पे बैठते हैं तो हमने जब डिफरेंट इश्यूज छेड़े होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हों वो दूसरी प्रोबेबिलिटी देखें, और जब उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करेंगे तो थोड़ी सी हमारी क्या कहते हैं ना, टनल विजन से विजन बड़ा हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान में हमारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है सॉरी कि हम कितने फॉर्चूनेट हैं कि हमारे आगे पीछे हर हिसाब से, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो और मादनियात हों, उसकी बहुत बड़ी वाफर मिकदार है। और जो दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जाके हमारी कंट्रीज़ में जाके प्रोक्योर करती हैं और वो उससे पैसा कमाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम खुद उसे प्रोक्योर करें या उसको आगे से लेके चले तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी हो सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इन आउटसाइड जो हमने अपने बहुत सारे काम इन सो कॉल कंपनीज को दिए हुए हैं, इनको पता है कि इन्होंने खुद कर ली तो फिर हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इस तरह की डिबेट है। हमारे अक्सर दोस्त इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखते, तो जब हम इस तरह की डिबेट छेड़ते हैं तो उससे मेरे ख्याल में सुनने वालों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और फिर अगर वो सवाल करे तो उससे हमारे सामने नई चीज़ें खुल के आती हैं। मेरे ख्याल में आपका मकसद यही है कि आप लोगों को एज ए कंपैरिजन एक इलाके की बात कर रहे हैं, एक तरफ उसकी उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फ्लॉज इसलिए है कि जो वहाँ पे लोग बैठे उस इलाके को मैनेज कर रहे हैं, या तो कैपेबिलिटी का इशू है या वो जो रन करने वाले हैं वो करप्ट हैं और अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वही सिचुएशन अगर आप उठा के पाकिस्तान की तरफ से आए, यहाँ नॉट जस्ट ओनली कैपेबिलिटी, लोगों में भी करप्शन है। हालांकि कैपेबिलिटी नहीं है और करप्शन है, तो उसकी वजह से आज हमारा मुल्क यहाँ पे बैठा हुआ है। अदरवाइज हम सही कह रहे हैं कि उस खित्ते की एक बहुत बड़ी यानी फूड बास्केट प्लस मिनरल के हवाले से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बाकी लोगों को छेड़े, अगर उसके ऊपर सवाल करना चाहते हैं, चाहे किसी भी मिनरल्स के ऊपर बात करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, और लोगों को थोड़ा सा जब आगे कहीं जाएंगे तो इसके ऊपर डिबेट कर सकेंगे। तो बिल्कुल इसे रोटेट करें। आबिद भाई देखें, आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें। जी
ये फरी कश्मीर भाई आपने बोला है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो है ना वो डिबेट होती है, तो सर माजरत के साथ ये ब्रॉड जो है ना, ये नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने जो इन्फॉर्मेशन इधर की उधर होती रही है, ब्रॉड हमने शुरू की थी इमरान खान पीटीआई के लिए। तो पूछने का मकसद ये था इन भाई से कि आया इनका तल्लक पीटीआई से है या नहीं है, इतनी सी बात थी भाई। आप करें जैसी मर्जी डिबेट करें, कोई इतराज़ नहीं है, सारे मेंबर रिस्पेक्टेबल हैं इधर जो बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है किसी से भी। लेकिन फिर भी ये इस बात को मखलूत नज़र रखते हुए एक छोटा सा मैंने आर्गूमेंट दिया था कि इनका तल्लक किस पार्टी से है, किस जमात से है। हमारा मकसद इधर इकट्ठे होने का यही था कि हम लोगों को मोटिवेट करें और इमरान खान की जो आइडियालॉजी है उसको स्प्रेड करें। बाकी और कोई जिस पार्टी से भी तल्लक हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा पूछना फ़र्ज़ बनता है कि ये दिल ब्रॉड भाई किसके आप लिए मेरे वो को शुरू तो किया। बात कर वरना रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो पता है आपको, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सही है कैजुअल भाई, गपशप भाई होती रहती ब्रदर है लोगों के सही साथ। है, आपकी बात मुझे समझ लग गई। जी सही है, नहीं मोहतरम साहब सही है। मैं ये फाइंड आउट करना चाहता था इस भाई से, वो दूसरा थे ना, वो पीपल पार्टी के थे, उनने डिबेट खराब कर डाली क्योंकि वो अपना बस ना नजरिया दिखा रहे थे और ये वो। तो मैं ये क्लियर करना था अच्छा ये कि क्या सोच है ये, वो अब तो अगर अब ज़ाहिर है अगर वो पार्टियों की वो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, जैसे वो सी भाई कर रहे हैं बातें, तो वो भी एक होता है ना इनपुट, वो जी हाँ जी, जो मैं उससे इसीलिए पहले छोड़ थोड़ा सा ठीक है। उनसे तो मैं ये नहीं मांग कर रहा था इंट्रोडक्शन किस ली थी कि पार्टी के उनका ताल्लुक है या नहीं, बेसिकली मैं किस ये कह रहा पार्टी था की वो तरफ खराब ना झुकाव करें है या डिबेट। वो किस बस पार्टी में उनका इंटरेस्ट है, इस वजह से सवाल किया था। वरना ये वो पहले भाई सवाल आए ना पूछने वाला माशाल्लाह, तो तो है उन्होंने नहीं ना फिर आपका जिसका ये जो पूछा था, बाकी फिर भी पूछना पड़ता है एज ए फॉर्मेलिटी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं बुरा कोई नहीं बात बनाया। नहीं, मैं तो एक बस इससे क्लियर कर रहा था कौन सा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बुरा नहीं बनाया। अपडेट भाई, आप जी बुरा जी, ना बनाइएगा, ये हम नहीं 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 इससे नहीं, सर जी मुझे थोड़ा सा मौका दे। एक्चुअली मेरी ये, मैं बड़ा सरगर्म कारकुन हूँ इमरान खान साहब का, और मेरी ये कह ले कि 5वीं की छठी आइडिया, और इसका नाम अपडेट इसलिए रखा है कि मैं पाकिस्तान गया था, वहां पे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो मैंने अपडेट के नाम से अब आईडी बनाई है। जी सर। तो आप कहाँ से हैं सर इस वक्त? मैं एक मिनट। मैं गुजरांवाला से सर। नहीं नहीं, इस वक्त कहाँ पे? मैं यूके में सर। यूके किस जगह पे? मैं डरबी में। अच्छा, आप डरबी से हैं। अच्छा सर, आप किसी को जानते हैं जो हमारा पीटीआई का मेंबर है? हमारे डरबी में ना भाईजान ज्यादातर भट्ट बरादरी है, और वो सारे नून लीग के हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो भट्ट बरादरी है वो नून लीग की है, तो इनके साथ काफी होता रहा। लेकिन मैं जो अब मेरा अपडेट हुआ था वो मेरा इस ये कह सोशल मीडिया की वजह से हुआ था। तो मेरी कोई वीडियो थी ये वो, तो पहले कॉलें आती रही हैं, मैं इग्नोर करता रहा हूँ कि मुझे कॉल एक दो दफा आई, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर पाकिस्तान गया था तो उन्होंने एयरपोर्ट से मुझे वेलकम कर लिया था। खैर चलो, वो तो एक बाद की बात है, कुछ दे के कुछ ले के कुछ बैठ के कुछ अंदर रह के तो आ गए हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद ये अपडेट के नाम से आईडी बनाई है। तो रही बात इमरान खान की, सर जी वो हमारी जिंद जान है। जी अपडेट भाई, वैसे अपडेट की जगह ना इसको फिर कर लें अपडेटेड, राइट? अगर तो अपडेट का जान, प्रोसेस मुकम्मल हो गया ना, हाँ जी। वो बात ठीक है आपकी, थोड़ा सा लेकिन ना मैं हमें पता क्या, दिल से निकलता ही हमें नहीं ना है वो अगर खान, आपको दिल ना, से नहीं निकलता। जी जी, मैं ऐसा सिर्फ अगर आपकी तबा पे नागवार ना गुजरे मेरे भाई, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या कैसे हुआ है, मतलब थोड़ा सा, अगर इट्स नहीं नॉट जिसे कहते हैं भाई, और लाइव पे नहीं रहने दे। मैं बस आपको बता दिया ना कि मैं बड़ा घर, मैं अगर कोई पहली वीडियो मेरी लवली के नाम से मेरी आईडी थी भाईजान, पहले लवली के नाम से ना, तो अगर आप कोई नजर से वीडियो गुजरे, वो मैंने आईडी बंद नहीं की है, खैर मोबाइल ही रख लिया गया, मेरा नंबर भी मोबाइल भी हर चीज रख ली हुई है। तो वो मुझे बुलाया था 8 फरवरी को दोबारा, लेकिन मैं वापस आ गया। मैं 8 फरवरी को कहाँ उधर जाने वाला हूँ। तो ये नंबर भी मोबाइल हर चीज मैंने फिर आके न्यू ली है। तो बस ऐसा ही था कि कुछ नहीं बर्दाश्त होता था। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी थी, लेकिन ये था कि जो इमरान खान के खिलाफ बात करता था उसको मैं स्टिच जरूर करता था। तो बस वो फिर जज्बात में कुछ लफ्ज ऐसे मुंह से निकल जाते हैं भाईजान, तो बस वो ऐसे ही कुछ। वो नासिर भट्ट साहब हैं अपने लंदन वाले,
जानते होंगे आप लोग। जी बिल्कुल बड़े जानते हैं जी नासिर हाँ जी, भाई। बस उनके साथ कुछ हो गई थी। चलें जी, तो अब आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या हाल है, पीएम से प्रेसिडेंट तक हर बंदा करप्ट है भाईजान। ठीक है, तो किसकी सुनी जाएगी जब हमारा खान जिसको दुनिया सलाम करती है वो बेचारा अंदर बैठा होता, हम किस बात की मूली हैं। नहीं भाई, पता है बात क्या है? बात ये है कि हम तो बहुत अच्छे बापों की मूली हैं। ये जो 1% गंदे अंडे हैं जी जी। जिन्होंने हमारा सारा सिस्टम यरगमाल बना रखा है पाकिस्तान का, ठीक है ना। इन गंदे अंडों के लिए इंशाल्लाह अब इनकी जगह नहीं होगी उस पाक भाईजान सरजमीन के अंदर। सिर्फ एक दफा खान साहब बाहर आके सिर्फ एक दफा हाथ खड़े कर दे, पता नहीं यार हमारी अवाम में शऊर क्यों नहीं है कि यार देखो वो आपके लिए बैठा हुआ है अंदर, बस बातें। मैं उधर काफी रहा हूं, तकरीबन 20-25 दिन गया, तो मैं 3 माह के लिए था, लेकिन 20-25 दिन में आ गया। जिससे पूछो खान उसके दिल में है, जिससे पूछो खान उसके दिल में है, लेकिन अमल कोई नहीं है भाईजान, प्रैक्टिकल कोई नहीं है, बस नाम से खान के साथ है सारे। चले ये बड़ी ठीक। बात है जी, आज के दौर में नाम से भी अगर भाई मेरे साथ हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, ज़िली इनकलाब है, ठीक है ना जी। पहले तो ये भी ऐसे भी नहीं होता था। अभी थोड़ा सा टॉपिक पे बात की ना, जैसे फहीम भाई ने की, मैंने थोड़ा सा टॉपिक को चलाया है। तो मकसद हमारा सिर्फ ये है, देखिए, हिजरत, हम सब मुहाजिर हैं, ठीक है। मैं भी आपकी तरह हूं। मैं एक बात कर हूँ आपके साथ, देखिए, जी जी। जैसे आप मुहाजिर है, मैं भी मुहाजिर हूँ। हम मुहाजिर है ना, अपनी जो आबाओ अजदाद की सरजमीन, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपनी हवा, अपना सूरज, अपने रिश्तेदार, अपने बुजुर्गों की कब्रें, और फिर इतनी अल्लाह ताला की नेमतों वाली सरजमीन को छोड़ के हम दियारे गैर के अंदर जो है वो जलीलो ख्वार हैं। तो जो हिजरत होती है ना, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब की सूरत होती है, ठीक है ना। और हम जो इनकी वजह से, इन 1% जो हमारी अशराफिया है, उसकी वजह से हम 25 करोड़ इस ताब का शिकार है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि हमें तो, जैसे हमारी 25 करोड़ की आबादी है, हमें दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत होना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है ना। ये बिल्कुल। यूरोपियन और ये दूसरे तीसरे, ये आपके वीजे लेने चाहिए इनको, आपके जो है दरवाजे पे इनको आना चाहिए। आपका इतना पोटेंशियल वाला इतना जबरदस्त मुल्क है ये। मैं और फहीम भाई यही हम बात कर रहे थे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने इतने पोटेंशियल वाले मुल्क को, इतने जबरदस्त मुल्क को, ठीक है, और इतने मेहनती यहाँ के हमारे लोग, हम बाहर देखे ना, आप बाहर के मुल्कों में भी तो आते हैं यहाँ, मैंने देखा 18-18 घंटे लोग यहाँ पे आके हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या, कैसा एक सिस्टम हो हमारे मुल्क के अंदर कि हमारा अपना मुल्क जो है वो तरक्की करे, वो आगे की तरफ जाए। हम देखें, इमरान खान साहब के पीछे खड़े होने का हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है? यही मकसद है, ठीक है। इमरान खान साहब की वो कहते हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने एक हमें लीडर दिया है, और हमें एक, जिसे कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। मैं तो ये समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसका यही है कि एक आम शहरी, पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी बेहतर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये भैया मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, जी मुझे जी एक बात बताएं मेरी जान, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा जालिम है, ठीक है, ये हदीस भी है। तो फिर हम इतना जुल्म सह किस दिन का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जी भाई, पता है दिन तो कोई भी नहीं इंतजार कर रहा, हम सब रेडी हैं। तो मतलब आपका कहने का कि एक ऐसी एक जिसे कहते हैं, हम पहले ये बात हो रही थी कि खूनी इनकलाब, शायद वो भी वक्त आ जाएगा, वो भी बस है, लेकिन हमें उसके लिए पहले एक पूरी तैयारी होती है। तो ये जो कमिंग इलेक्शन है, बल्कि मैंने इससे पहले भी ये एक बात की थी इसके ऊपर कि 8 फरवरी के जो मेरे भाई ये इलेक्शंस हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी चांस है। ये मेरे और आपके लिए आखिरी चांस नहीं है, ये इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी चांस है। अगर अच्छा इन्होंने भाईजान, इस, आपका इसमें ग्रामी क्या है भाईजान? जी मेरा नाम भाई ओसी है, जी। मेरा नाम ओसी है ओसी भाई। अच्छा ओसी ओसी। भाईजान, हेलो, मुझे तो खैर याद नहीं। मुझे एक बात बताए, ये जो नवाशी साहब गए हैं, क्या आपका क्या ख्याल है, वो यहाँ से डील करके परफेक्ट, वो तो गए हैं वजीर आजम बनने के लिए और वो बन भी जाएंगे, तो फिर अवाम के वोट का क्या होगा? अवाम ब्रदर, का वोट। बात ये है कि जब
आपके घर के ऊपर किसी का कब्जा हो जाए, मेरा सादा सा सवाल है, हाँ जी। आप बाहर बैठ के मातम करेंगे, सीना कुबी करेंगे, या उस कब्जे को छुड़वाने के लिए कोशिश करेंगे आप? अगर तो मेरे में थोड़ी सी गैरत होगी तो मैं तो कहूंगा मर तो गया हूँ, बेघर तो हो गया हूँ, इनको भी ले मरो। तो अगर मैं ठीक है, बस बातें करने लगा बाहर बैठ के सीना को भी करूंगा और क्या करूंगा। असल में आप इस चीज को देखें, मैं आज से 2 साल पहले की आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जो शऊर होता है ना, जो कोई भी चीज होती है, कौमों की तकदीर की तब्दीली जो होती है, आप दुनिया में कोई भी कौम देख रहे हैं ना, वो सबसे पहले उसकी ज़हनी तब्दीली होती है, ज़मीनी तब्दीली बाद में होती है। मैं 2 साल पहले की, जब खान साहब की हुकूमत अभी सैक नहीं हुई थी, ठीक है, उससे पहले हमारी जो अक्सरियत थी हमारे पाकिस्तान की, और हम जी जी पंजाबियों, मैं भी पंजाबी हूँ, ठीक है भाई, हम जी जी पंजाबियों की अक्सरियत जो थी, वो अक्सर हमारे जो फौज है ना, ठीक है ना, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, ये कब्जा ग्रुप है, ये हम्म। आज से नहीं, ये पिछले 2 साल से ऐसे नहीं है, ये पिछले 75 साल से ऐसे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो इनके खिलाफ 2 साल पहले आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर आप कोई भी बात करते थे, तो हमारे आज वो सारे पाकिस्तानी भाई जो इस बात के ऊपर बड़े गुस्से में है कि यार ये क्या हो गया, वही हमें गालियां निकालते थे, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये अगर पाकिस्तान की 70 या 80% आबादी जो है, वो इस चीज को, उन्होंने इस चीज का, उनको अल्लाह पाक ने शऊर दिया है कि हमारी राइट डायरेक्शन क्या है, हमारी सिमत, हमारे मसाइल की जड़ क्या है। अगर आपको आज पता है, मुझे भी इस चीज का शऊर है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे नजदीक। तो ये तो एक तकदीर बदल देने वाली चीज है ना जी, शऊर की तब्दीली जो है, ये तो तकदीर बदल देने वाली एक चीज है। ये को वोट शोट, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ भाई, मेरे लिए ये वोट शोट और ये जो राजधानी इन्होंने जाली सी वहां कंजरी कोठा बनाया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है ना, हाँ वो बिल्कुल। डेट्स नॉट इम्पोर्टेंट, या बिल्कुल। वो डेट्स नॉट इम्पोर्टेंट ब्रदर। वहां तो ये काकड़ जैसा बंदा ला के उन्होंने, देखे ना, 2 नंबर आदमी वो बैठा दिया, कल को कुत्ता यार ला वो के खुद बैठा सकता है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट पे इधर जी रहा है। हाँ, तो हमें ये जो निज़ाम है, ये जो जबर का, जुल्म का 1% गैर मुल्की एजेंट्स ने कब्जा किया है जो हमारी पाक सरजमीन पे, इसको छुड़ाने का हमारी जंग है, यही हमारी आज़ादी की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। उनके सबसे से पहला फोरम है कि हमने अपने लोगों को इस चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शऊर देना है हमने उनको, राइट। तो ये खान साहब ने तो माशाल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह पाक ने उनको दिया, उन्होंने कर दिया ये काम। सर उन्होंने 22 ईयर जो है ना इसी में सर्व की हैं। जब आपको याद होगा कि जब खान साहब अपनी सीट भी नहीं जीत सके थे तो लोग इनको मजाक करते थे कि किधर हैं आपके वोटर। तो वो भाई बोला मैं कि आपको अपडेट, भाई आप मेरे भाई हैं, ठीक है, जी जी बट हैं अब, मेरे भाई हैं आप यकीन करें, मुझे अपने घर में अपने बहन भाइयों ने गिरबान से पकड़ा है, यानी सिर्फ इस चीज पे कि ओ भाई तू जनरलों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ गल नहीं करनी। मेरे दोस्तों ने, यारों ने, ये आज से 2 साल पहले की बात है, सिर्फ 2 साल पहले की, भाईजान आप 2 साल ठीक है। मैं अभी गया हूँ मेरे मुंह से निकलवाया गया है, कहो पाक आर्मी जिंदाबाद। मैंने कहा जी पाक आर्मी जिंदाबाद मैं नहीं आपको बता सकता। बहरहाल एनीवे मैं तो ये बात कर रहा था कि जब ना खान साहब अपनी सीट भी नहीं जीते थे लोग पूछते थे कि किधर हैं आपके वोटर, तो खान साहब कहते थे कि मेरे वोटर अभी छोटे हैं बड़े हो रहे हैं। अब खान साहब के जो वोटर हैं जो 25 से 35 साल के हैं वो भी हैं, ठीक है, और जो आने वाली नस्ल है वो भी खान साहब ने तैयार कर लिया है। असल डर उनको इसी बात से है कि अब छोटा बच्चा है जनाब 5-6 साल का, वो भी खान साहब के गुण गा रहा है। तो ये असल डर है, और इनकी इस डर की वजह से क्या हो रहा है कि 25 करोड़ अवाम पिस रही है, ठीक है, और 25 करोड़ अवाम के हकूक की पमाली हो रही है, जबरदस्त किस्म की करप्शन अरूज पे है। मैं कहने का मतलब है कि बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, हमारे पास नए आए हैं अरफान सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर क्लैन जी जी सर। सर जी सर, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं आप लोग। तो ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। कहाँ से हैं सर आप? जी मैं इटली बोलोनिया शहर से, इटली से हूँ, और खान साहब का वो एक अदना सा कारकुन हूँ।
तो पीटीआई का कोई भी कारकुन मिल जाए सोशल मीडिया पे वैसे तो वो ऐसा ही लगता है जैसे कोई सगा भाई है, चलो बहुत ठीक है, प्यारा अब लगता अपने है। अपने घर में ही आए हो, वेलकम। अब हमारे हमारे ओसी भाई ने एक दो चीजें रखी थी, और फेम फेम साहब ने उसे, फेम साहब, अरे म्यूट लगा लें प्लीज, जी ठीक। म्यूट लगा दें, म्यूट लगा लो भाई। फहीम साहब जागो जरा, आए ने बंदे जरा जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कोई। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं जागा हूँ, मैं आप सबकी बातें सुन रहा था। पहली बात तो ये है कि इरफान भाई और मेरे अपडेट भाई जो डार्बी से हैं, मैं भी यूके में रहने वाला हूँ, पीटीआई यूके का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मेरे भाई। तो पहले तो आप मुझे बताएं, गुजरावाला में आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, आपकी गुफ्तगू तो मैंने सारी सुन ली, आप कितने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं? पाकिस्तान उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप समझते हैं कि आपके बहन भाई दोस्त या रिश्तेदार, कितने लोगों को आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में समझ सकते हैं कि वो आपके कहने पे वोट डालेंगे? कोई है फिगर आपके दिन में? सर जी, पहली बात यह है कि जितने भी हमारे मिलने वाले हैं ना अब तक के सब पीटीआई के हैं, और जो पीटीआई से मींस के पुराने क्लास फेलो या कॉलेज फेलो जो भी नून लीग में थे, वो उनसे ऑटोमेटिक ही जो है ना वो क्या कहते हैं 751 लग गई है, उनसे नहीं। बाकी जितने भी दोस्त यार को कजन रिश्तेदार हम सब पीटीआई के अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली पहली मैंने ये क्यों बात की, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ। क्योंकि आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और मेरे ख्याल में इरफान भाई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ये पिछले महीना डेढ़ हो गया है, हम लोग ने बाकायदा ये कंपेन चलाई हुई है कि यहाँ से बैठ के, और ऑब्वियसली जब टाइम आएगा तो पाकिस्तान जाके हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, हर किसी की पीछे बैकहोम से मेरा अवध भाई आपको म्यूट करना बस आप पड़ेगा म्यूट लगा लें। जी। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप म्यूट कर दीजिए फिर खोल लीजिएगा अपडेट भाई, मेरी बात सुन लेंगे फिर खोल लीजिएगा। अच्छा, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, और मैं क्यों ये दोबारा, इसीलिए इसी बहाने इरफान भाई भी समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तकरीबन 237 लोगों को मेरे कहने पर वोट डालेंगे। उनमें मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, मैं खुद ओल्डर हूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, ये मुझे पता है कि मेरे कहने पे वो 237 लोग वोट, सो मेरा अपना टारगेट हो गया 237 लोग मेरे कहने पे वोट डालेंगे। मैंने इसलिए ये फिगर बताया, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके कहने पे उतने ही हों, आपके 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है कतरा कतरा दरिया बनता है। तो आप मुझे बताएं रियल फिगर की कितने बंदे आपके कहने पे वोट डाल सकते हैं? भाईजान मेरे कहने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली हम लोग हैं खान, हम बेसिकली मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे जो है ना पैदाइश और हमारा स्कूलिंग वगैरह गुजरावाला में ही हुई है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग एबटाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाईजान। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कि वो लोग मुझे कहते हैं कि जब भी अगर इलेक्शन हुआ तो हो सके तो टिकट लेके जरूर आना है, खान को वोट डालना। अच्छा मेरे भाई मेरी तसल्ली से बात सुने, ठीक है। मैंने जब आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात को समझता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है जितने भी सर्वे आ रहे हैं, 90% लोग, 91, 89 करीब लोगों ने वोट डालना है इमरान खान को। ये तो किसी बेवकूफ़ के सामने भी आप बात करेंगे तो उसको पता है, ठीक। अच्छा, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है, जैसे आपने अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियोस लगाई, उन्होंने देख ली, जब आप गए तो उन्होंने आपको रोक लिया, ओबियसली आपको मेहमान बनाया, आपके पर सख्ती की, आपको बहालत मजबूरी अपनी आईडी भी चेंज करनी पड़ी, और आप आसानी से अपनी जान
मतलब मुश्किल आसानी जैसे भी अपनी जान छुड़ा के आ गए। यानी कि उन्होंने एक तरह से ये कोशिश की कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करे, लेकिन रियलिटी में उन्होंने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, आपको और डिटर्मिन कर दिया कि ठीक है मैं सामने से नहीं, सबसे पीछे से हट के वो बात करूंगा। जाहिर